Hello students. Previously we were studying the stone soup in Bohemia. So half of the chapter we had completed. Now today we will go on the next paragraph. So before this, I hope so that you should recall the story whatever we have studied in this course. In this way we were studying that the soldiers he was returning from the war, a great war, and when the time came in the night, he decided to stay, and in the Bohemia he kept his bag to have a night, and then when he decided to rest that night, the villagers, means the people of the village, they were not ready to give him anything until they were telling him that please just you go out from here. But the soldier he decided to rest that day, and he was hungry, and then he decided to make a stone soup. And when the villagers saw that he is going to prepare something, so the villagers, they were not ready to give anything to him. So in this way the soldier says, okay, I'm not going to ask you to take anything from you people. So see, all right then, said the soldier, stirring the pot with a wooden spoon. Don't upset yourself. It is just a little prehistorical recipe I picked up in a foreign, presented to me by a saint, in gratitude for my having served his life when threatened by wild elephants. These two stones have the power to brew for me the most delicious, the most watering soup that ever a man tasted. Now see, so man he was preparing the stone soup by using two stones, and the villager, they were thinking that with the help of two stones how he can prepare a delicious soup. This was the big question before them. But the soldier he told that this stone soup, means this historical stone soup, I got from a saint, means one of the saint gave this idea that how I can prepare this soup only when I saved his life by the wild elephants. So by saving the life of the saint of the elephants, the saint gave this only to gratitude, means the saint gave this recipe idea to prepare a delicious soup only for gratitude, मीन्स उसके जान बचाने के बदले में धन्यवाद के रूप में खुश होकर के उसने ये स्टोन सूप बनाने के लिए दो स्टोन दिए कि इसके हेल्प से तुम सूप बना सकते हो।
Oh, and taking a little of water in his spoon, he sipped it with relish. And then, after making, when the soldier prepared his stone soup, he was tasting and then he was telling, oh, what a soup I have prepared. कैसा सूप है जो मैंने बना दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है. While the peasants watched in baffled silence, this is the very same soup that Alexander that night before he stormed the pyramids, stone soup from China. So, the peasants means the villager of the Bohemia, they were confused. Baffled means confusing, means they were thinking what is going on. They were confused. वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है. इस जो दो स्टोन है इससे कैसे कौन सा सूप तैयार हो सकता है, इसके अंदर कौन सी शक्ति है. बट this is the very same soup that Alexander that drank the night before he stormed the pyramid, stone soup from China. तो जो पिरामिड है उसको जीतने के लिए, यानी उस पर भी आक्रमण किया रहा होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट. ठीक है, तो उस जो पिरामिड्स है उससे भी, यानी जिसको जीता उससे भी बढ़कर के ये क्या हो गया, सूप हो गया. इतना अच्छा बनाया उसने. द सूप फॉर हीरोज यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल. और ये जो सूप है जिस तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए बनाया, उसने बनाया पिरामिड, तो उसी तरह उसी के लिए ये जो सूप है बन करके तैयार हुआ. यानी उसके जैसे उन सोल्जर्स के लिए, was also a soldiers as well as the king, the Alexander, तो वो दोनों था. तो ये भी जो सोल्जर्स था ये भी कह रहा है कि जो ये सूप बना है, ठीक, जो अलेक्जेंडर था उसके लिए बना है. यानी अब मैं पी रहा हूँ तो मैं भी उसी की तरह हूँ. आई लाइक योर फेसेस, सपोज आई मेक अ बिट एक्स्ट्रा फॉर यू. आई लाइक योर फेसेस. तो जो सोल्जर्स था वो कहा, मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग चेहरों को, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोग के भी थोड़ा सा बना सकता हूँ. और द कॉल्डन इज बिग एनफ, जस्ट अ बिट मोर वाटर, दैट इज इट. और अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बताइए, मैं आप लोग के लिए भी थोड़ा सा तैयार कर सकता हूँ. करना क्या है, मुझे केवल उसमें पानी डालना है, क्योंकि स्टोन के अंदर ये क्वालिटी है कि वो एक अच्छा सा सूप बनेगा उससे. Stoke up the fire, give it a stir, there we are, then enough for us all to have a bowl full. Oh, the citizens were taken aback. Are you trying to tell me, said the Burgomaster severely, that all you need to make your soup is just those two stones and a potful of water? So here the Burgomaster means the village of the head of the village, the Burgomaster, not accepting he was not accepting that with the help of two stones the soldier can prepare a good soup. So then he was asking, यहाँ पर जो बुर्ज मास्टर है वो सोचता है कि इस दो स्टोन की हेल्प से वो कैसे एक अच्छा सा सूप बना सकता है. तो वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचने लगता है, वो शॉक हो जाता है पूरी तरह. और ये भी वो सोचने लगता है केवल उसमें पानी मिलाने से सूप तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो था थोड़ा सा चतुर.
और आप जानते हैं कि जो पहले के लोग थे, गांव का मुखिया उसको बनाते थे जो थोड़ा सा बुद्धिमान हो, ठीक है, एजेड हो, बुद्धिमान हो, सबकी नज़रों में अच्छा हो। तो ऐसे ही बुर्ज मास्टर। दैट इज ऑल सर, रिप्लाइड द सोल्जर। फिर सोल्जर ने कहा, बस सर इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। नथिंग मोर नॉर लेस, ना और कुछ चाहिए। टेल यू व्हाट स्टोन सूप is even better, even more breathtakingly wonderful with just a pinch of garlic or of a carrot brings out the flavor. You know, cauliflower is the next best thing. Anybody got a bit of green stuff to throw in now while I make sure the stones are fermenting properly? फिर जो सोल्जर्स ने, द सोल्जर्स ही टोल्ड दैट if we will mix the garlic, cauliflower and carrot, a bit of pea, so then it will be the more tastier than ever we had. मीन्स कि अगर इस सूप में थोड़ा सा cauliflower, कैबेज, कैरेट ये सब डाल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो ये और भी शानदार हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? ब्रीथ टेकिंगली। ऐसा लगेगा जैसे कि आदमी का अंतिम सांस चल रहा हो और उस समय उसको कुछ मिल जाए, यानी उसको थोड़ा सा और ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, उसका लास्ट टाइम चल रहा है और सांस नहीं ले पा रहा हो अच्छे से, मरने की कगार पर हो, और उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए, कैसा होगा उसके लिए? वो लाइफ का सबसे अच्छा क्षण होगा। उसी तरह से ये जो सूप तैयार हुआ होगा, अगर इसमें ये सब मिला दिया जाए, ये ऐसा सूप तैयार होगा कि ऐसा लगेगा कि जान ही ले लेगा, यानी इतना टेस्टेड हो जाएगा, टेस्टी। Now see the next paragraph. The pigeons looked at each other sheepishly and suspiciously. Nobody wanted to move first. Nobody wanted to admit his curiosity. Nobody wanted to make a fool of himself. But suddenly a common impulse overcame them all. So the pigeons looked at each other. Means the pigeons are villagers. They were not ready to go home because they were thinking who will go first and to bring the carrot, cauliflower and so many things. इसमें जो विलेजर्स थे वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो उनको जाना चाहिए घर पर, ये सब ले आना चाहिए, और दूसरी साइड वो लोग ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मूर्ख बन जाएं, ठीक है। वेल दे सेड जस्ट a piece or two could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes, stone soup after all was something new in their lips. But the villagers, they were thinking that if we will bring one or two pieces of anything, just like cauliflower, cabbage, carrots, then it will not harm us. Means by giving this, it doesn't mean that our store फूड आइटम्स विल बी लेस। वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग थोड़ा सा cauliflower, कैबेज इसको दे भी देते हैं सोल्जर्स को डालने के लिए उसमें, तो उससे तो हमारा अनाज बहुत कम नहीं हो जाएगा, तो हमें दे देना चाहिए। और वो लोग दूसरी साइड ये भी सोच रहे थे कि ये उनके लाइफ का, उनके जीवन का एक क्या होगा, अलग चीज़ होगा जो ये सब कभी हुआ नहीं।
Stone soup, after all, was something new in their lips, and they might as well make the most of it. One by one, they slipped away and came back with contribution. And then the all villagers they went their home and they brought something to give the soldiers, और सभी जो गांव के लोग थे वो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ अपना योगदान करने के लिए ले आए और उसको उसमें सोल्जर्स को उस सूप में प्रिपेयर करने के लिए, डालने के लिए या उसमें अपना योगदान किए. Splashes. Splash went half a turnip. Invent a potato, invent cabbage and onion and peas until the brie was marvelously thick and fragrant, and you could not see those two stones for the bubble and richness of it. Splendid, said the soldiers. और जब ये सब जो भी विलेजर्स ले आए तो उसको जब सूप में सोल्जर्स ने डाल दिया, उसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो उससे जो बबल्स उठ रहे थे, जैसे आप देखेंगे कोई चीज़ गरम करिए तो अगर आंच थोड़ी सी तगड़ी होती तो उसमें बबल्स बनता है. तो ये सब डालने के बाद निश्चय ही सर्टेनली जो सूप था अच्छा खुशबू दे रहा था. तो जो सोल्जर्स था वही कह रहा था, वाह ऐसा, वाह स्प्लेंडेड, क्या शानदार सुगंध है, जो है कि ऐसा कभी नहीं मैंने लिया, तो और अच्छा बन रहा है. ओह व्हाट अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव, कितना अच्छा डिनर हम लोग जा रहे हैं आज लेने. वन एंड ऑल ऑफ अस in this benevolent and hospitable village, it is not very night of the week that you have stone soup in Bohemia. Oh, Mr. Bushmaster, sir, and thus carrying them along with a joke for an old woman, a dig at portly merchant, a little flattery for the Bushmaster, and flood of anecdotes. The soldier had all the citizens sitting around him, wondering and expectant. So see, oh, what a dinner we are going to have, one and all of us, in this benevolent and hospitable village. जो soldiers, means the soldier, he was telling that the night which we are going to have here, it will be the memorable. जो रात हम यहाँ गुजारने जा रहे हैं इस स्टोन सूप के द्वारा, यानी इसको पीने के बाद ऐसी रात हम लोग को क्या रहेगी, हमेशा याद रहेगी. और ये आम रात नहीं होगी, मीन्स ये वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही अच्छी होगी. मिस्टर बुशमास्टर, सर, and thus carrying them along with a joke for an old woman. फिर जो सोल्जर्स था वो थोड़ा सा बुर्ज मास्टर के साथ हंसी मजाक करता है, उनको फ्लैटरिंग करता है. फ्लैटरिंग मीन्स मस्का लगाना, यानी किसी की फेक अप्रिसिएशन, उसको जो है कि झूठी, उसके बारे में झूठी बड़ाई करना. तो थोड़ा सा वो जो लेडीज़ होती है उसको, अब देखिएगा, एन ओल्ड वोमन, उस ओल्ड वोमन को, और पोतली मर्चेंट मीन्स कोई जो मर्चेंट रहा होगा, हाइट वगैरह में छोटा होगा, तो उसी के बारे में उन सबों को मस्का लगाता है, उन सबों की फेक अप्रिसिएशन यानी झूठी बड़ाई करता है. वो लोग भी खुश हो जाते हैं. Wondering and expectant
until at last the soup was ready. Its nourishing vapors were wafting around the square. A pile of bowls had appeared, and they all sat on the paving stones, the soldiers in the middle, sipping the stuff with infinite satisfaction. और फिर जो सोल्जर्स है उसको घेर करके चारों तरफ जो है कि सारे विलेजर्स बैठ गए और बुर्ज मास्टर भी। और फिर सबके कटोरी में एक एक चम्मच निकाल करके वो सूप को देता है और कहता है वाह, ऐसा टेस्ट तो कभी नहीं मिला। और थोड़ा सा ये जो पीजेंट्स थे बोहिमिया के, यानी जो पीपल थे, उनके लिए भी ये क्या था, नया अनुभव था। तो वो लोग भी इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन, कभी ना समाप्त होने वाले, बहुत ही ज़्यादा सोचते हमेशा ये चलता रहे। तो सूप को थोड़ा थोड़ा वो लोग टेस्ट लेते रहे। Exquisite, said the Burj master, who prided himself on knowing about the food. Magnificent, said the portly merchant, who was very fond of eating. Really tasty, I must say, observed the woman with the wart on the nose. On the top of the great wall, did you say? Asked one youth with his mouth full. Alexander the Great, do you mean? Queried another. Stone soup, said the last of them, all taking at once. What a miracle! What a marvelous gift from China! The exquisite, said the Burj master. जो बुर्ज मास्टर था वो भी थोड़ा बड़ाई में कुछ कहा। एंड देन जो पोतली मर्चेंट है, यानी इसके बाद जो विलेजर्स थे वो लोग भी उस सूप के बारे में कहने लगे, वाह कितना अच्छा सूप है। बट द व्हाट द सूप वी आर टेकिंग दैट एवर वी हैड नेवर टेस्टेड इन आवर लाइफ। सो अपने जीवन में हम लोग ऐसा सूप कभी नहीं पिए थे, वाकई में बहुत अच्छा है। तो फिर इसमें एक यूथ था। आस्क्ड वन यूथ विथ हिज माउथ फुल, अलेक्जेंडर द ग्रेट डू यू मीन? कि आप जानते हैं कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी जो अलेक्जेंडर था जो ग्रेट, उससे भी बढ़ कर के ये हो गया। जो सूप है ये तो उससे भी बड़ा हो गया। Said the last of them all, checking at once, what a miracle! और ऐसा चमत्कार कभी नहीं हो सकता, लेकिन आज हो गया है। ये स्टोन सूप हमने टेस्ट किया है। What a marvelous gift from China! और ये चाइना की तरफ से उस सेंट ने जो दिया था ये हिस्टोरिकल स्टोन सूप, कितना अच्छा है। And the soldier chuckled to himself. Chuckled means laughing. And the soldier was laughing to himself as he had his soup comfortably. और फिर जो सोल्जर्स था वो हंस रहा था और वो अपना सूप आराम से पी रहा था। हंस क्यों रहा था? The soldiers were laughing at the villagers because the soup was not uh, the soup of the taste was not good by using stone. It was good because the people have brought the cabbage, cauliflower, tomatoes, peas. That's why he mixed these things in the soup. That's why it is tasty. That's why it is tasty. But the peasants, they were thinking that the stone soup is made because of stone. तो जो विलेजर्स थे वो लोग ये सोच रहे थे कि जो इतना अच्छा सूप बना है ये इस स्टोन की वजह से है, लेकिन रियलिटी ये था कि जो उसमें
इन लोगों ने मिलाया था कैबेज, कैलीफ्लावर, टोमेटो, पीस, इसकी वजह से वो सूप अच्छा था। इसलिए जो सोल्जर्स था वो हंस रहा था। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और स्टोरी नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए कि जो सोल्जर्स है वो वार से वापस आ रहा था और रास्ते में एक उसको विलेज मिला, बोहिमिया। वहाँ वो रुका और बोहिमिया विलेज में कोई भी उसे रुकने नहीं देना चाहता था। वो लोग उसको कहे कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ हम लोग तुमको कुछ देने वाले हैं नहीं। यहाँ पर जो भी है हमारे पास खाने के लिए सिर्फ हमारे लिए है। लेकिन जो सोल्जर्स था उसने कहा ठीक है, केवल मैं यहाँ एक रात रुकूंगा और मुझे यहाँ रुक जाने दीजिए। तो उसमें से कई लोग आए, अपने उस गांव के लोग, उन्होंने उसको समझाया, लेकिन जो सोल्जर्स था वो नहीं माना। उसने कहा ठीक है, मुझे एक रात केवल गुजार लेने दीजिए। फिर उसे भूख लगा रहता है और वो अपना सामान वगैरह वहीं रखता है और फिर क्या करता है कि वहाँ पर वो आग वगैरह जलाता है और सूप तैयार करने के लिए अपना कौल्ड्रन, जो बड़ा सा लोहे का बर्तन, उसको निकालता है, उसमें पानी डालता है और 2 स्टोन डालता है और उसको बॉयल करने लगता है। तो जो विलेजर्स होते हैं वो देख के आश्चर्य हो जाते हैं, ये क्या बना रहा है। तो जो आर्मी जो सोल्जर्स है वो बताता है कि ये मैं स्टोन सूप बनाने जा रहा हूँ और इस आइडिया को मुझे एक सेंट ने दिया था चाइना के, जिसकी मैंने जान बचाई थी। किससे? वाइल्ड एलिफेंट से, जो जंगली हाथी थे। तो उन जंगली हाथियों से मैंने उसकी जान बचाई थी। उसके बदले में उन्होंने उपहार के रूप में उन्होंने मुझे इसे बताया और मैं आज ये सूप तैयार करने जा रहा हूँ। तो उसको गर्म करता है, उसमें से थोड़ा सा सूप निकालता है, उसको टेस्ट करता है, कहता है वाह कितना अच्छा बना है। तो जो विलेजर्स है वो लोग भी थोड़ा सा चौंकते हैं, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, इस स्टोन से सूप बन सकता है। तो जो सोल्जर्स था उसने कहा कि और भी टेस्टी बन सकता है अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा गार्लिक, कैबेज, कैरेट, टोमेटो, पीस, ये सब ला करके मिक्स डाल दें तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो ये सब विलेजर्स, कोई भी रेडी नहीं था जाने के लिए पहले, लेकिन फिर वन बाई वन बारी बारी से लोग गए और उस ले आकर के सूप में डाल देते हैं और फिर जो सूप तैयार होता है उसको सोल्जर सबको देता है और सब लोग उसका टेस्ट करते हैं और ये उनको महसूस होता है कि इस तरह का सूप उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं पिया था और ये सूप वाकई में अच्छा है। तो जो सोल्जर्स है एट लास्ट वो हंसता है विलेजर्स के ऊपर कि मैंने अपना काम तो कर लिया, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, लेकिन स्टोन की हेल्प से मैंने सूप तैयार किया और इन विलेजर्स को भी फूल बनाया। दैट्स वाई। फिर इसके बाद वो अपना रात गुजार लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो आई होप नरेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी सो प्लीज़ आस्क मी।